سدا ایما کی شمع کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی سرحدوں پر بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے لیکن روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سلام کیا، اس بچے نے جواب دیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے، مامور رشید پوچھتا ہے کہ بچے تم پڑھتے کہاں ہو؟ تو اسی مدرسے کا نام لیا جہاں سے مامون کیا رہا تھا۔ مامور رشید سے کہا میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ مامور رشید کہتا ہے تم فلاں مدرسے میں پڑھتے ہو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے اور دم میں کیا سے کیا بات، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جشن عظمت قرآن، جشن دستار حفظ، جس میں آج ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام کے علم و عمل و عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور آپ منبر نور پہ تشریف فرمائیے۔ علماء، حفاظ، ائمہ مدارس، ائمہ مساجد، مدرسین مدارس اسلامیہ کا جو نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، آج اپنی مختصر سی تقریر میں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظمت اور علماء اور حفاظ کا کیا مقام ہے وہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 10 منٹ تک آپ حضرات ہمیں برداشت کریں، پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک ہم آپ کو برداشت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ تھوڑی سی دیر خاموشی کا ماحول پیدا کریں۔ میرے کرم فرما خطیب اہل سنت
استاذ الحفاظ والقراء خلیفہ حضور طاہر ملت حضرت قاری اسلم خان صاحب قبلہ کی محبتیں جو آج میں آپ تمامی حضرات کے دیار محبت میں حاضر آیا. قرب و جوار میں کئی بار آنا ہوا ہے, آج نرسنگ دیہا میں پہلی بار آنا ہوا ہے. جی دعا کریں پروردگار عالم اس محبت کو سلامت رکھے. دور کرنا ہے اندھیرا علم حاصل کیجئے, دور کرنا ہے اندھیرا علم حاصل کیجئے, چاہیے تم کو سویرا علم حاصل کیجئے. کان بھی ہے آنکھ بھی ہے پر بنا علم و ہنر, کان بھی ہے آنکھ بھی ہے پر بنا علم و ہنر, آدمی ہے اندھا بہرا علم حاصل کیجئے. اور لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے جہاں بھی ملے جس قدر ملے. دعا ہے پرچم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے, اور قرآن کریم کی تعلیم آج جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں. قرآن ہے کیا یہ آپ بہت غور سے سنیے گا, یہ علماء آج اپنی دعاؤں سے نوازیں گے, آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن ہے کیا؟ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرا, پڑھیے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے, تو سب سے پہلی وحی نماز کے تعلق سے نازل ہوتی. زکوٰۃ کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا, روزے کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا, حج کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا. سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا, پڑھیے. تعلیم کے تعلق سے, پڑھنے کے تعلق سے پتہ چلا جب علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم نماز کی فرضیت کو جانیں گے, علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم روزے کے احکام کو پہچانیں گے, علم ہمارے پاس ہوگا تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کون اس کا مستحق ہے یہ مسائل ہم جانیں گے. علم ہمارے پاس ہوگا تو حج کس پر فرض ہے اور کون سے مقام پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, اگر علم ہمارے پاس ہوگا تب ہم اس کے احکام کو جانیں گے. تعلیم کتنی ضروری ہے, ایجوکیشن کتنا ضروری ہے, شکشا کتنی ضروری ہے. آج گوار آدمی سے آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جاہل آدمی سے آدمی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آج آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا, اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے, اگر آج آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے. تعلیم کتنی ضروری ہے, شکشا کتنی ضروری ہے, ایجوکیشن کتنا ضروری ہے. اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. اب آؤ حدیث پاک کی روشنی میں سنو, تعلیم کون سی ہونا چاہیے, شکشا کون سی ہونی چاہیے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن, جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے, جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے, فعلیہ بالقرآن, تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے, سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے. آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتے, آج ہم اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں نہیں بھیجتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا, کالج جائے گا تو بچہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, تو دولت زیادہ کما کر کے لائے گا. ہاں میں مانتا ہوں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا تو وہ پیسہ تو ضرور زیادہ کمائے گا, لیکن تمہیں وہ تاج نہیں دلا سکتا جو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. قرآن وَأَمِرَ بِمَا فِيهِ يَلْبِسُ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ كَضَوْءِ الشَّمْسِ. نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے, اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہو. نعرہ تکبیر,
नारे रिसाल सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मसलके आला हजरत नारे तकबीर है क्या। अब उलमा की तवज्जो, कुरान को अगर क़राअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। आप दुनिया का जायजा ले लीजिए, चाहे कोई भी किताब हो, लेकिन इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। कुरान की तिलावत होती है, इतनी दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। आप दुनिया का जायजा लेकर के देखिए, पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। आप देखिए, अगर कोई नया मकान बनाता है तो उसके अंदर कुरान पढ़वाता है, कोई इंसान दुकान रखता है तो उस दुकान में कुरान पढ़वाता है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाता है तो बरकत के लिए, हादसा से बचने के लिए उसमें कुरान की तिलावत करवाता है। कुरान की तिलावत, किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तब कुरान की तिलावत होती है, घर में खुशी का मौका आए तब कुरान की तिलावत होती है। जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। और देखो कुरान की शान, कुरान करीम की तिलावत कभी बंद नहीं होती है। आप आज हमारे यहाँ पर रात है, कोई मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर दिन होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर असर का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर मगरिब का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ फजर का वक्त होगा, और पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। पता चला कुरान की तिलावत कभी बंद ही नहीं होती है। और किताबों का हाल ये है, एक बार आप पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, एक बार आप सुन लो दोबारा सुनने का आपका मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान वो अल्लाह की किताब है, इसको जितनी बार सुना जाता है एक अलग ही मजा आता है, जाता है, अलग ही मजा आता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अज़मते कुरान, अज़मते कुरान मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब क़िबला नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान क़राअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और कुरान को क़राअ यक़रअ क़रअन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। इसके क्या माना आते हैं? मिलाने वाली। मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। इसका एक सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और इसका दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। कुरान मिलाने वाली। मौला अली शेरे खुदा फरमाते, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान में नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है और हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं कुरान की शान आपको बताता हुआ चलूं। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। ये कौन इमाम गजाली है? आज अगर मदरसे के बच्चों को कोई खेलता हुआ देखता है तो पूरे मदरसे के ऊपर इल्जाम लगा देता है। अगर मदरसे के बच्चे कहीं गली में घूमते हुए मिल जाए तो कहते हैं फला मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, फला मदरसे में तालीम नहीं दी जाती है, वहां के बच्चे हमने फला जगह घूमते हुए देखे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। ये उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हारून रशीद और उनकी बीबी जुबैदा ने ये कहा कि हम कुछ राहे खुदा में ऐसा खर्च करना चाहते
चाहते हैं जिसमें हमारा नाम ना हो, जिसमें हम कोई नुमाइश ना हो, तो इन्होंने नहर जुबैदा, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसी नहर खुदवाई थी, नहर जुबैदा के नाम से है, जो मैदान अराफात के करीब से गुजरती हुई जा रही है। इतनी लंबी नहर खुदवाई और उसमें और लोगों का भी चंदा शामिल किया, और वो नहर बहुत लंबी नहर खुदवाई। और हारून रशीद के दूसरे भाई थे जिनका नाम था मामून रशीद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मस्जिदें तामीर कराई, उन्होंने मदरसे तामीर कराए, और मदरसे के अंदर तालीम का बेहतरीन इंतजाम रखा, और उनका खर्चा अपने जिम्मे पे लिया कि जो मदरसे में खर्च की जरूरत पड़ेगी मामून रशीद देगा। देखो जरा, ये भी अपने वक्त के बादशाह हैं। एक दिन मदरसा आपकी सरपरस्ती में चल रहा था, आप मदरसा घूमने के लिए पहुंच गए। जब आप मदरसा घूमने के लिए पहुंचे तो जैसे ही मदरसे में आप दाखिल हुए तो बच्चों को आपने पढ़ते हुए नहीं पाया। कोई बच्चा बातें कर रहा है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं। आपने जब बच्चों का ऐसा माहौल देखा तो दिल में ये ख्याल आया, मैं इतना पैसा मदरसे पे खर्च कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा तालीम पे खर्च कर रहा हूँ, और यहाँ तो कोई मुझे पढ़ता हुआ भी नहीं मिल रहा है। आपका दिल टूट गया और आप ये इरादा करके मदरसे से बाहर निकले। क्या फायदा है इतना पैसा खर्च करने से, क्या जरूरत है इस तालीम पे इतना पैसा खर्च करने से। जब आप मदरसे से निकले दिल में ख्याल था कि अब ये मदरसा बंद कर दूंगा, मैं इसमें कोई खर्चा नहीं दूंगा। जैसे ही थोड़ी दूरी पे आए, एक पेड़ के नीचे एक बच्चा किताब की तिलावत कर रहा था, एक बच्चा किताब के अंदर मुताला कर रहा था, किताब को पढ़ रहा था, और ऐसा मुताले में मुनहमिक हो गया था, ऐसा गुम हो गया था कि बादशाह गुजर के जा रहा है, उसे पता ही नहीं कौन जा रहा है। बादशाह खड़े होकर के देखने लगा, अरे ये बच्चा कैसा मुताला कर रहा है। बादशाह खड़ा हुआ, तुमने मेरे गुजरने का ख्याल नहीं किया? कहा मैं तो मुताले में लगा हुआ हूँ, मुझे क्या पता कौन गुजर के जा रहा है, मुझे सिर्फ अपनी तालीम से मतलब है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, ये उस दौर की बात है जिस दौर में मामून रशीद का दौर है, जिस दौर में मोबाइल का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अरे कोई वो मीडिया का भी दौर नहीं था। उस दौर में बच्चे मदरसे में आपस में बातें कर रहे थे। तो आज जब बच्चों का हाल आप देखेंगे तो कैसा माहौल आप अपनी निगाहों के सामने लाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है एक और बच्चों की वजह से पूरे मदरसे के ऊपर आप इल्जाम लगा दे। देख लो मामून रशीद ने कहा, बच्चे तू कहां पढ़ता है? कहा अला मदरसे में पढ़ता हूं। कहा बेटा तू कौन सी तालीम हासिल कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं आलिमियत की तालीम हासिल कर रहा हूं। उस बच्चे को देख करके मामून रशीद कहता है, मत हो मेरे मदरसे से 50-60 बच्चे फारिग, मेरे मदरसे की आबरू बचाने के लिए यही एक तालिब इल्म काफी है। बच्चे को, उसी बच्चे को आज दुनिया वाले इमाम गजाली के नाम से कहा है, किताबें लिखी है जो अपने मुजद्दिद बनते चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह से है। बहुत इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम बनकर के चला गया, हाफिज बनकर के चला गया, बस्ती सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो कयामत में वही एक आलिम उस बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी है। ये मत सोचना कि हमारा पैसा जाए जा रहा है, नहीं, सबसे बेहतर तालीम कुरान की तालीम है, और ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। आज एक पैगाम लेकर के जाओ, उस बच्चे का नाम इमाम गजाली है, अपने वक्त के मुजद्दिद बन के चमके इमाम गजाली। मामून रशीद कहता है मेरा पैसा जाए नहीं गया है, मेरा पैसा कामयाब हो गया है। अल्लाहु अकबर। वो इमाम गजाली, एक गैर मुस्लिम ने आके सवाल किया, इन उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कहता है हुजूर आपके कुरान में दावा है वला रत्न वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो।
आपने फरमाया बेशक अल्लाह का फरमान हक है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। उसने कहा अच्छा अब एक बात हमें बताइए, हमने आपके कुरान को पढ़ा और उसमें हमने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा और सितारों की चाल का जो जिक्र है उसमें तो हमको सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। अब आप हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है और इतने अंदर की बात कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ लिया, किसी ने घर में कुरान खानी कराई तो कुरान पढ़ लिया। वरना आज का माहौल तो ऐसा बन गया है, हमने कुरान को इतने ऊपर छुपा के रख दिया है और सामने एलसीडी लगी है, टीवी चल रही है। आज माहौल इतना खराब हो गया हमारे घरों का कि घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। ये इमाम गजाली हैं, आप कहते हैं तू कुरान पढ़ता है? उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया कौन सी आयत में तूने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा? उसने कहा सूरह यासीन शरीफ में कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में, दूसरे नेगेटिव अंदाज में, एक मुस्बत अंदाज में, दूसरे मनफी अंदाज में। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। आपने फरमाया फिर कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर देता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा समझाइए मैं समझ नहीं पाया हूं। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत से तूने सितारों की चाल का जिक्र का पता लगाया? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब आपकी तवज्जो, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, अहले इल्म दुआओं से नवाजेंगे। कुल्लुन फी फलक, अब आप देखिए कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा, फलक में पहला हर्फ, आखिरी हर्फ क्या है? काफ है, बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़ कुल है, कुल का आखिरी हर्फ काफ है और आखिरी हर्फ काफ है और उसके बाद वाला हर्फ लाम है और इधर फी का फा है, मिला के हो गया फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से